सो हेलो एवरीवन गाइस, ये हमारी आज की करंट अफेयर्स की क्लास है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील टॉक अबाउट दी second Feb we celebrate is World Wetland Day. Okay, and in the year of 2026, ठीक है, its theme is wetlands sacred, life sustaining, a timeless legacy, ours to protect. Okay, I am repeating, wetlands sacred, life sustaining, a timeless legacy, ours to protect. Okay, currently India में there are total Ramsar sites are there. Okay, Ramsar sites, how many? It's a total are 98. Okay, and guys, here it is the Ganga river system. It's left bank tributary while it's right bank tributaries. It is important to keep the thing in your mind. Okay, and it's our text holiday. It's our tax holiday for data centers and enthusiast IT business leaders. Okay, so budget may facilitate domiciliation of the global IT data operations, boost to global capacity. Wait a moment, yeah. Centers में इस पर innovation center क्या करेंगे? Data centers will operating again more, and IT sectors also, and the ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स में इस पर इनोवेशन ज़्यादा लेके आएंगे. टैक्स हॉलीडे प्रपोज्ड फॉर फॉरेन फर्म्स स्टेबलाइजिंग डेटा सेंटर्स इन इंडिया. तो टैक्स हॉलीडेज ये है फॉरेन के फर्म्स के लिए, सो दैट दे विल कम टू इंडिया एंड मेक देयर फर्म्स एंड देयर हेडक्वार्टर्स. एंड इफ आई जस्ट गिव द एग्जांपल ऑफ द गूगल्स हेडक्वार्टर विच इज़ गुरुग्राम इन हरियाणा. ओके, so everyone, recently the union budget signaled a strategic shift toward institutionalized innovation by the aggressively lowering regulatory barriers and strategically re-engineering India's fiscal framework to establish the nation as the definitive global hub for data. So India want to make itself as a global hub for data technology and innovation, said industry experts and analysis. So recent in the budget of the 2026 के बजट में, in which the finance minister of our country Mrs. Nirmala Sitharaman announced that कि सिंगलाइज्ड स्ट्रेटेजिक शिफ्ट टुवर्ड द इंस्टीट्यूशनलाइज इनोवेशन, कि हम इंस्टीट्यूशनलाइज इनोवेशन के टुवर्ड अपने आप को शिफ्ट करना चाह रहे हैं. ओके, then expanding this safe harbor threshold to 2000 crore alongside in automated approval system. यहाँ पे safe harbor है 2000 करोड़ का. ठीक है, wait a moment, it's about the 2000 crores safe harbor investment and automated approval system also provided much needed fiscal predictability रहेगी for the large global capability centers like the GCC. Okay, shit, what happened? So that global company will come to India and they make their investment, and also our India would make itself as a global hub in the IT sector and data centers kind of. So that's why this is the article which has been announced in our budget. Okay, so the proposals of a tax holiday until 2047 proposal है 2047 तक का. ठीक है, एंड फॉर एनी फॉरेन कंपनी एस्टेब्लिशिंग डेटा सेंटर इंडिया. कोई फॉरेन कंपनी है, सपोज दैट ये इंडिविजुअल है, ये यूएसए से है और ये हमारे भारत हमारे इंडिया में यहाँ पे आके ये इन्वेस्ट करना चाहता है. ठीक है, हमारे इंडिया में. आई एम राइटिंग शॉर्ट, जस्ट राइटिंग अबाउट इंडिया. ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनको लेवरेज कर रहे हैं सो दैट दे विल टेक द इंटरेस्ट टू ओपन द डेटा सेंटर्स एंड ऑल्सो टेक इन इंटरेस्ट टू इन्वेस्ट इन आर companies and also with respect of the technology innovation and data center opening. Okay, so let's see that a legal provision or regulation that reduces or eliminates liability. इससे क्या क्या eliminate हो जाएगा, liability जो रहेगी वो eliminate होगी, हट जाएगी. penalties रहेगी, टैक्स रहेंगे, टैक्स scrutinies रहेंगी for the individuals and businesses. तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हम लो कर देंगे, मतलब कम कर देंगे. ठीक है, so yeah, provided they meet specific predefined conditions of the 15% on cost for companies providing data services from India to a relative entity creates a powerful anchor incentive. ठीक है, said Avinash Vasishtha, chairman and CEO of Tholsons and former chairman and CEO of Accenture India. According to Mr. Vasishtha, by clubbing all IT
services under a single category with a common safe harbor margin of the 15.5%, enhancing the monetary threshold to the for availing this benefit to 2000 crore from the 300 crore. Earlier it was 300 crore around, but it's been increased till 2000 crore. So it's a good attempt and initiative by which our government, okay, which has been already announced in our financial years, our upcoming budget, okay, by our finance minister Mrs. Nirmala Sitharaman. Okay, so guys, it was from our article, okay. And then if I just talk about again, so Gartner, a global टेक रिसर्च फर्म, एक गार्टनर है जो ग्लोबल टेक रिसर्च फर्म है, सेड उन्होंने कहा है कि इन टुडे से VUCA स्टैंड फॉर द वोलेटाइल, अनसर्टेन, कॉम्प्लेक्स एंड एम्बिगुअस, ओके, लैंडस्केप. दिस मूव ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया फ्रॉम अ मेयर डिलीवरी हब इनटू अ स्टेबल. तो इन्होंने बोला कि इंडिया अभी सपोज दैट दे आर अज्यूमिंग इंडिया एज अ मेयर डिलीवरी हब, और ये इनटू स्टेबल स्ट्रेटेजिक सेंचुरी फॉर ग्लोबल एंटरप्राइजेस में कन्वर्ट हो जाएगा. सो दिस इज़ अ मैसिव टेलवाइंड फॉर AI इनेबल्ड डेटा सेंटर. तो हम एक AI इनेबल्ड डेटा सेंटर क्रिएट करना चाहते हैं. दो इट्स सक्सेस हिंजेस एंटायरली ऑन आर एबिलिटी टू स्केल इंडस्ट्रियल पावर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कूलिंग रिक्वायरमेंट. तो हम इंडिया को जो एज अ रिक्वायरमेंट इस कूलिंग रिक्वायरमेंट वुड बी प्रूव एंड स्केल इंडस्ट्रियल पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि हम इंडस्ट्रियल पावर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इंडस्ट्री से रिलेटेड विद रिस्पेक्ट ऑफ डेटा सेंटर एंड IT जनरेटेड एंड AI जनरेटेड, तो इसमें हम कहीं ना कहीं स्केल अप करना चाहते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ AI एंड करंटली डेवलपिंग टेक्नोलॉजीज परस्पेक्टिव. द बजट हैज सेंट अ डिसिसिव सिग्नल टू ग्लोबल इन्वेस्टर्स बाय प्रोवाइडिंग अ लॉन्ग टर्म टैक्स हॉलीडे फॉर फॉरेन क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स. ठीक है, तो यूजिंग इंडियन डेटा सेंटर अकॉर्डिंग टू द KPMG इन इंडिया. तो बजट में ये चीज़ मेंशन की गई थी दैट एंड हैज सेंट अ डिसिसिव सिग्नल भेजा गया टू द ग्लोबल इन्वेस्टर, ताकि ग्लोबल इन्वेस्टर आए एंड दे कम टू इंडिया एंड टुक इंटरेस्ट इन द इन्वेस्टमेंट विद रिस्पेक्ट ऑफ आर IT सेक्टर, डेटा centers establishment and kind of also via this initiative our India's investment would be increased and our economy would boom. And along with this particular thing, the employment would also be generated for the formal sector and organized sectors workers. Okay, so it's a good initiative. Now guys, it's a 7 rail corridors get green signal. अभी 7 रेल के कॉरिडोर बनाए जाएंगे, इसके लिए ग्रीन सिग्नल दिया गया है. ओके, कॉलिंग दैम ग्रोथ कनेक्टर्स. द फाइनेंस मिनिस्टर सेज द 4000 किलोमीटर हाई स्पीड नेटवर्क प्लान एट एन आउटले ऑफ 16 लाख करोड़. मतलब 16 लाख करोड़ का आउटले प्रोवाइड किया जाएगा. मतलब ये इतना ये अमाउंट है. देन किलोमीटर रहेगा 4000 किलोमीटर. तो ये हमें याद रखना, इट्स अ बेसिक थिंग. विल लिंक मुंबई पुणे हैदराबाद एंड हैदराबाद बेंगलुरु एंड हैदराबाद चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी एंड वाराणसी Siliguri corridor which is located in our West Bengal. Everyone, I have already made a session over the Siliguri corridor, which is also known as the chicken neck in between our West Bengal, which is our eastern state of our country, and along with this also the Bangladesh. Okay, so please go through our playlist. And right now we are टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर आर्टिकल. ठीक है, तो 7 रेल कॉरिडोर्स बनाए जाने वाले हैं, इसके लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है इन आर बजट. ठीक है, अगेन आई एम टेलिंग यू हु इज़ आर करंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ आर इंडिया. शी इज़ मैडम Mrs. Nirmala Sitharaman. So finance minister Nirmala Sitharaman in her budget speech and announced 7 high speed rail corridors बनाए जाएंगे which will connect 5 साउथ इंडियन स्टेट को अदर स्टेट से. मतलब साउथ इंडिया के कितने हैं, 5 स्टेट को अनदर इंडिया के स्टेट से कनेक्ट किया जाएगा. 16 लाख यहाँ पे करोड़ों फंड एलोकेट किया जाएगा. ये सारा कुछ है. और यहाँ पे जो सिटीज मेंशन की हैं अबव द हेडलाइन अबव दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल्स हेडलाइन, सो यू कैन सी. ठीक है, वेट अ मोमेंट. So, see, calling them growth connectors, the finance minister said the corridors would link Mumbai, Pune, Hyderabad, Bengaluru. Everyone, in recent past, our previous lecture series, I talked about the Silicon Valley of our country. So, Bengaluru is known as the Silicon Valley. ठीक है, ये याद रखना है. It's associated like same Silicon Valley in United States of America. Please let me know in the comment section which city is known as the Silicon Valley. एक मिनट,
या सिलिकॉन वैली ऑफ यूएसए, ठीक है। सो दी कॉरिडोर विल रिड्यूस ट्रेवल टाइम, रिड्यूस हो जाएगा बिटवीन चेन्नई एंड बेंगलुरु टू एन आवर, एक मतलब चेन्नई एंड बेंगलुरु के बीच में 1 घंटे का टाइम डिफरेंस आएगा, 1 घंटा और मतलब मतलब 1.5 आवर टोटल, मतलब पूरा 1-1.5 घंटा। एंड बेंगलुरु टू हैदराबाद टू 2 आवर्स, बेंगलुरु से हैदराबाद का 2 आवर्स, तो ये सारा आवर मेंशन है, ठीक है, यू कैन सी बाय दिस। सो एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, रेलवे मिनिस्टर याद रखना है कौन है हमारे करंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवे, ये है मिस्टर अश्विनी वैष्णव। इन्होंने एक्सप्लेन किया दैट विद 5 साउथ इंडियन स्टेट्स इंटरलिंक्ड एंड अनाउंसमेंट वुड सर्व एज अ ग्रोथ मल्टीप्लायर फॉर देम एवरीवन। कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, लेट मी टेल यू वन थिंग, दैट कुछ भी इन्वेस्टमेंट होगा, कुछ भी IT कंपनी खोले ओपन हो, या रेलवे सेक्टर हो, या अनदर इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर, तो एनीथिंग मोर और लेस एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट करेगा ही करेगा, ठीक है। So here about the Delhi Varanasi corridor will bring down travel time to 3 hour and 50 minute, मतलब 3 hour and 50 minute टाइम रिड्यूस करेगा। आई एम राइटिंग इन फास्ट, जस्ट इन राइटिंग, ओके। सो ये याद रखना है ना। तो ये पूरा डेटा है, यू कैन गो थ्रू बाय दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। Safety related measures are important with respect of this cause we are recently we have seen like the multiple plane crashes along with the railway two different kind of railways from different direction are triggered to each other, and just kind of many casualties we have seen in our news currently which prevailed in our news, okay. So safety is major concern, okay. So safety related measures, the railway minister said a sum of 1,20,000 crore has been earmarked on safety related measures such as the track maintenance करना, ट्रैक को मेंटेनेंस कैसे कराना है, locomotive issues, coaches with rapid installation of the कवच, everyone कवच system is for the कवच सिस्टम इज रेलवे रिलेटेड सिस्टम, इंडिजिनियसली डेवलप्ड है ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम विच इज़ नॉन एज दी कवच सिस्टम। तो याद रखना है यहाँ पे कवच, इट इज़ इंपॉर्टेंट। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सो UPSC हैज़ बीन आस्क अ क्वेश्चन ओवर दिस पर्टिकुलर टर्म, ओके। कहाँ से डेवलप हुआ, किसने डेवलप किया, सो यू कैन गो थ्रू बाय दिस बाय विकीपीडिया एंड गूगल बाबा टू, okay. So the Ministry of Road Transport and Highways has been granted total capital expenditure 3.9 lakh crore for the financial year 2026 to 27 as compared with 2.87 lakh in the revised estimate of the current fiscal, a hike of 10.7%. allocation to state on National Highways Authority of India NHAI, प्रीवियसली आपको प्लेलिस्ट में एक लेक्चर मिलेगा हाईवेज़ के ऊपर, उसमें आप NHAI के बारे में डेप्थ में जान सकते हैं, okay. And has been increased to 1.87 lakh crore from last year 1.70 lakh crore, ठीक है। तो लास्ट ईयर था 1.70 lakh crore, अभी हो गया है ये 1.87 lakh crore, okay. So this was the information from our today's article. You can see over here this particular article in depth, yeah. सो गाइज इट्स रेयर अर्थ कॉरिडोर्स टू कट चाइनाज इम्पोर्ट। सबसे ज़्यादा बताऊँ तो चाइना में ही सबसे ज़्यादा रेयर अर्थ एलिमेंट आपको मिलेंगे। एवरी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, दैन यू कैन गो थ्रू बाय दिस पर्टिकुलर आर्टिकल कि REE और हैवी अर्थ मटेरियल में क्या डिफरेंस होता है। वेट अ मोमेंट, रेयर अर्थ, वेट अ मोमेंट, सॉरी, रेयर अर्थ एलिमेंट एंड हैवी एलिमेंट या हैवी अर्थ एलिमेंट, ठीक है। रेयर अर्थ एलिमेंट इन द सेंस एवरीवन, जो कोई ऐसा एलिमेंट, ऐसा मटेरियल जो रेयरली अर्थ में प्रोवाइड हो या किसी पर्टिकुलर लोकेशन में रेयरली प्रोवाइड हो, तो दैट विल कॉल लाइक रेयर अर्थ एलिमेंट। वाइल हैवी एलिमेंट इन द सेंस जो कोई पर्टिकुलर एलिमेंट है जो अपने आप में बहुत मतलब जिसका हैवी वेटेज है, जिसका विद रिस्पेक्ट ऑफ वेट यू कैन एसोसिएट एज यू कैन अज्यूम एज अ हैवी एलिमेंट। तो REE जो रेयरली मिलता है कुछ पर्टिकुलर लोकेशन पे विद रिस्पेक्ट ऑफ देयर पर्टिकुलर फिजियोलॉजी एंड पर्टिकुलर जोग्राफिक लोकेशन, ओके। तो चाइना के पास REE सबसे ज़्यादा है करंटली, ओके। So India in this particular article here difference again Finance Minister Nirmala Sitharaman announced in her Union Budget speech in the year of 2026 recently that government will support the mineral rich
स्टेट, गवर्नमेंट क्या करेगी, हमारे ऐसे स्टेट को सपोर्ट करेगी जो मिनरल में रिच हैं, उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, इन स्टेबलाइजिंग रेयर अर्थ कॉरिडोर। हम रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाएंगे टू प्रमोट द माइनिंग, जिससे माइनिंग हो पाएगी, प्रोसेसिंग हो पाएगी एंड रिसर्च हो पाएगी एंड मैन्युफैक्चरिंग हो पाएगी ऑफ द क्रिटिकल मिनरल। ओके, दिस अनाउंसमेंट कम्स एट चाइना। चाइना द डोमिनेंट फोर्स, याद रखना है, चाइना करेंटली इज द डोमिनेंट फोर्स विद रिस्पेक्ट ऑफ मिनरल्स। ओके, ये हमें अच्छे से याद रखना है। इफ आई जस्ट टॉक अबाउट द यूएसए, यूएसए इज द सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ चाइनीज रेयर अर्थ। चाइना के रेयर अर्थ सबसे फर्स्ट नंबर पे जापान बाय कर रहा है, देन चाइना के जस्ट बाद यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका सेकंड है जो चाइना के रेयर अर्थ मटेरियल को इंपोर्ट करता है। तो ये है बेसिक थिंग टू नो अबाउट। ओके, ये डेटा इन्फेक्शन फिगर है, अभी यू कैन गो थ्रू दिस एंड है ना, हाउ मच, मतलब कितना पहले प्रीवियसली एलोकेटेड था एंड कितना क्या नाउ। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, एवरीवन IEA सॉरी, ये आफ्टर द ऑयल क्राइसिस कब हुआ, ऑयल क्राइसिस हैपेंड in the year of 1973। इसके बाद इन द ईयर ऑफ 1974 में IEA फोर्स में आया। इसका हेडक्वार्टर जो है ये है पेरिस इन फ्रांस। ओके, ये याद रखना है। सेम ईयर इसके आसपास बताऊँ, 1975 टू 1977 तक इंडिया में इमरजेंसी थी। उस टाइम इंडिया में इमरजेंसी थी एंड इन दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड ऑफ द इमरजेंसी हु वाज द PM मिसेस इंदिरा गांधी। ये हमें याद रखना है। इट इज़ द बेसिक इंफॉर्मेशन एंड डिफरेंट इंफॉर्मेशन, ओके, टू कीप इन योर माइंड, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो IEA का फोर्स में आया इन द ईयर ऑफ 1974, हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। तो अब हम देख लेते हैं। तो यहाँ बात की है, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA, दे कंप्राइज 17 मेटल को ये कंप्राइज करती है। यहाँ पे उनके नेम मेंशन किए हैं। नाउ क्रिटिकल कंपोनेंट की बात करूँ तो प्रोमेथियम इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट। प्रोमेथियम एक अनदर क्रिटिकल कंपोनेंट है जो इस लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं है, एज बिकॉज इट इज़ द रेडियो एक्टिव एंड डज नॉट अकर इन द मिनरेबल क्वान्टिटी, क्योंकि ये अपने आप में एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है। ठीक है, तो जिसके अंदर मिनरेबल क्वान्टिटीज़ नहीं है। दे आर क्रिटिकल कंपोनेंट इन क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज एंड सच एज द इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड द विंड टर्बाइंस एज वेल एज इन डिफेंस एप्लीकेशन। इसमें प्रोमेथियम का यूज़ होता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, प्रोमेथियम इज ए रेडियोएक्टिव मटेरियल। You can see here all the rare earth deposit exist in countries such as rare earth जो डिपॉजिट है वो ब्राज़ील में मिलेंगे, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, चाइना होल्ड्स नियरली हाफ ऑफ द ग्लोबल रिजर्व। तो मेन ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया है, चाइना, लेकिन चाइना में लगभग हाफ है। चाइना में कितना रिजर्व है, लगभग हाफ। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ओके, चाइना इज़ दी वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कॉन्ट्रीब्यूटिंग ओवर 60%। याद रखना है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट है। जापान सबसे ज़्यादा खरीद रहा है इससे। इसके बाद में USA है जो सेकंड इंपोर्टर है इसके रेयर मटेरियल्स का। ठीक है, लेकिन हाफ ऑफ दी वर्ल्ड का जो है ग्लोबल प्रोडक्शन जो है, इसके सबसे ज़्यादा रिजर्व किसके पास में एज अ प्रोड्यूसर, चाइना को यहाँ पे माना जाता है 60%। बियॉन्ड एक्सट्रैक्शन चाइना डोमिनेट्स दी वैल्यू चेन विद अराउंड 92% ऑफ द ग्लोबल रिफाइनिंग कैपेसिटी है इसके पास, अकॉर्डिंग टू द IEA स्टैंड फॉर द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। मोreover इन द लास्ट 5 ईयर चाइना हैज़ बीन द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। लास्ट 5 ईयर का डेटा भी देखें तो चाइना ही सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, सप्लाइंग क्लोज टू द 30% ऑफ द ग्लोबल डिमांड। ओके, so guys, it was from today's article. Thank you so much.